A product of a manufacturing concern passes through the two processes, that is A and B. देखो कितने प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, ए प्रोसेस एंड द बी प्रोसेस. एंड देखो वंस द बी का प्रोसेस हो जाएगा तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द फिनिश स्टॉक. ऑब्वियसली ना, प्रोसेस जैसे खत्म हो गया इसका मतलब क्या, फिनिश गुड्स रेडी हो जाएंगे तो आपको प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा. The following figures have been taken from its book for the year ended 31st March 2013. Now, this all are the figures which have been taken from the book. और ये what is the year end? The year end is 31st March 2013. Now, class, raw material introduced in the process. Introduce in the process का मतलब है this is raw material input. So, raw material input we write down on the process account debit side. So, input for the process A as well as process B is given, but it is given in the units. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस पर यूनिट बट इन रुपीज. देखो 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, पर एक यूनिट का क्या रेट है, 125. 700 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द बी, बट व्हाट इज द रेट इज 200 पर यूनिट. wages, machine expense, direct expense, other factory expense, indirect expenses, all this are your expenses and expenses will be debited to process account. तो ये सारे expenses को हमें क्या करना है, हमें debit करना है process account में. Next is a normal loss in the weight. Now class, while doing the theory we have seen that normal loss is of a two type. One, it can be in the form of the weight loss, another it will be in the form of the scrap loss. तो वेट लॉस हो गया मतलब देखो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ केमिकल. इफ आई एम अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो अगर केमिकल बनाते बनाते द केमिकल गॉट इवोपोरेटेड, तो क्या मैं वो केमिकल को रीगेन कर सकती हूँ? कैन आई रीगेन इट अगेन? अगर मुझे जो इवोपोरेट हो गया मेरा केमिकल प्रोसेस में, अगर मुझे उसको रीगेन करना है तो कैन आई रीगेन इट एंड सेल दैट इन द मार्केट? ऑब्वियसली नो, क्योंकि वो इवोपोरेट हो गया है, मैं उसको रीगेन नहीं कर सकती हूँ. सो वेट लॉस हो गया है. सो वेट लॉस का कभी भी वैल्यू होता है क्या? नो. सो वैल्यू वोंट बी देयर. यूनिट्स हम कैलकुलेट करेंगे बट उसकी वैल्यू नहीं होगी. नेक्स्ट इज नॉर्मल स्क्रैप. मतलब ये वाला जो लॉस है, जो क्वांटिटी में हमें लॉस हुआ है उसका मार्केट वैल्यू है, हम उसको अगर सेल करने जाएंगे तो हमें कुछ पैसा मिल जाएगा. तो नॉर्मल लॉस. नाउ नॉर्मल लॉस इन वेट एज वेल एज द नॉर्मल लॉस व्हिच हैज बीन इन द स्क्रैप फॉर्म, दोनों किसके ऊपर लेना है? यूनिट इंट्रोड्यूस्ड पर. जितनी भी यूनिट्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर हम नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करते हैं. नाउ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अ स्क्रैप पर 10 यूनिट्स. हाँ, ये जो रेट है वो 10 यूनिट्स का दिया है. अब हमें कितना लॉस हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट. सो विल सी व्हेन दिस कम. Output is given for the process A and B. Now see class, process B का output cannot be transferred to the other process because बस B में ये जो 7,800 है वो हमारे finished stock बन गया. Okay, prepare process account, abnormal loss account and abnormal gain account. So how many process will be prepared? Two processes will be prepared, process A and process B, and apart from this two process we have to prepare two more accounts, that is abnormal loss account and abnormal gain account. Okay, chalo, this was a question which was been asked in the year 2013. Chalo, so prepare a format. Format remains the same. We will be giving the heading process A, process B, debit, credit, particulars, unit, rate, rupees. Same particulars, units, rate, rupees in the credit side as well. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं क्लास? यूनिट इंट्रोड्यूस्ड. Now let's see how much the unit was introduced. 10,000 units and the rate was 125. So write down over here 2 raw material input. Units में लिखेंगे हम 10,000. Rate will be how much? 125. So this will be 12,50,000. Now next is what? Wages. Wages is how much? 2,80,000. It is directly been given. So write down over here 2 wages.
2,80,000 is given, so directly write down in the amount column. After wages, we have a machine expense of 20,000. So again, it will be debited. So to machine expenses 20,000. Next one, direct expense 10,000 and other factory expense 45,000. So write down 2 expenses, and they have given us that it is a direct expense. So we need to write down 2 direct expense. 10,000. And other indirect expenses were, that is other factory expenses. $45,000. Next, after other factory expenses, we have a direct material of 5,000, indirect material of 5. So we need to write down over here 2 indirect material 5,000. अब और कुछ है क्या दिया है डेबिट साइड पर, और कुछ रिकॉर्ड होगा? No, everything is done. Now next one is normal loss but in the weight, that is percentage on the total units introduced in each process, that is input units पर लेना है. So we will be writing down by normal loss but this is in the weights. 5% of 10,000 कितना होगा क्लास? 5% of 10,000, this comes to 500. We won't be having its value. Why we won't be having its value, class? Obviously weight loss cannot be regained and it don't have any of the saleable value in the market. Next क्या दिया है? By normal scrap and percentage of the total units introduced in each process. So by normal 10% of 10,000. तो दिस विल बी हाउ मच? 1,000. अब देखो रेट में क्या है, 10 यूनिट्स का 800 है और हमें कितना लॉस हुआ है? हमें लॉस हुआ है 1,000 यूनिट्स का. सो वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट फॉर 1,000 यूनिट्स. हाउ वी विल बी फाइंडिंग आउट आउट कि अगर 10 यूनिट्स है तो 800 इज द कॉस्ट. सो 1,000 यूनिट्स के ऊपर कितना? अगेन 10 यूनिट्स, देखो पर 10 यूनिट्स का वैल्यू है. सो इफ 10 रुपीज इज कॉस्टिंग मी 800, तो 1,000 का कितना? 1,000 यूनिट्स का लॉस हुआ था. दैट इज वाई वी आर राइटिंग डाउन कि 1,000 यूनिट्स का कितना. दिस इज द यूनिट्स and this is the rate, that is the rupees. So we will be getting 80,000. अब देखो मेरे पास वैल्यू है और यूनिट्स है बट आई डोंट नो द पर यूनिट का रेट. How I will come to know the per unit rate? If I divide this 80,000 with 1,000, I will be getting down the rate. If I divide this 80,000 with 1,000, I will be getting the rate. So 80,000 divided by 1,000. So rupees 80. कितना हो गया? 80 rupees. Now afterwards, output is given, that is 8,300. So here we will be writing down by output transfer to process B. To output transfer to process B.
कितने का दिया है? 8,300। Then you can write by transfer to process B. चलो, now value is not given. Obviously rate तो दिया नहीं होगा. We need to calculate per unit, cost per unit, है ना. We need to calculate the cost per unit for finding out the amount. अब पहले तो ये देखते हैं कि यूनिट्स आर गेटिंग टैलेड और नॉट. यहाँ पर 10,000 है डेबिट साइड, वेरएल्स क्रेडिट साइड पर दिखते हैं इट इज कमिंग टू सी 9,800. मतलब क्रेडिट साइड पर अभी भी कितना यूनिट्स का शॉर्टफॉल है? वी हैव अ स्टिल 200 यूनिट्स का शॉर्टफॉल विच इज देयर इन द क्रेडिट साइड. व्हाट दिस इंडिकेट्स? इसका मतलब हुआ है कि हमें हुआ है नॉर्मल लॉस, सॉरी abnormal loss. So by abnormal loss, and we all know that चाहे वो abnormal gain हो या abnormal loss हो, it will be a balancing figure in the quantity column. Now we need to find out the amount, that is cost per unit. पहले find out करेंगे कि कितना रेट के हिसाब से है. अब देखो फॉर्मूला क्या है? डेबिट साइड का टोटल माइनस नॉर्मल लॉस इन द वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स. तो पहले देखते हैं डेबिट साइड इट इज कमिंग टू 16,10,000. तो 16,10,000 माइनस 80,000, क्योंकि क्रेडिट साइड पर सिर्फ 80,000 है. सो 16,10,000 माइनस 80,000 एंड इनपुट कितना है? 10,000 यूनिट्स का इनपुट किया माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट्स. अब देखो योर नॉर्मल लॉस इज हाउ मच? 500 का वेट लॉस प्लस 1,000 का स्क्रैप लॉस. सो टोटल मिला के हो गया 1,500. सो 10,000 माइनस 1,500 विल बी डन. चलो, सो आफ्टर doing the calculation we will be getting 180 as a rate. So let's write down over here 180. Now class, we all know this कि whatever would be the rate, cost per unit से जो भी हमें rate मिलेगा, see here, it will be applicable to your actual production, abnormal loss as well as abnormal gain. तो जो भी हमें ये 180 रेट मिला वो आउटपुट का भी है एज वेल एज नॉर्मल लॉस का भी है, सॉरी एबनॉर्मल लॉस का. सो 200 into 180 it is coming to 36,000 and 8,300 plus into 180 14,94,000. चलो, सो देखते हैं अब credit and debit side is getting tallied or not. 10,000 will be written on both the sides. Here it is 16,10,000. यहाँ पर आ रहा है yes, it is coming 16 lakh. Now class, this output of process A becomes input of process B. इसका जो क्लोजिंग होगा विल बिकम द ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस. तो हम इसको प्रोसेस में क्या बोलते हैं कि प्रोसेस ए का आउटपुट बिकम्स प्रोसेस बी का इनपुट. सो इन द प्रोसेस बी ये अपना क्या हो जाएगा? इनपुट. सो टू ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया? प्रोसेस ए. नाउ द प्रोसेस बी में भी ये सारे एक्सपेंसेस हुए हैं. सो वी नीड टू राइट डाउन ऑल दिस एक्सपेंसेस.
चलो लेट्स सी कितना है वेजेस. Wages is 1 lakh. Machine expenses is 10,000. So this will be 1 lakh. Machine expenses are 10,000. Then we have a direct expenses of 10,000 and other factory expense of 22,500. Now indirect material का amount कितना है? Indirect material is of 10,000. So we need to write down over here 10,000. और प्रोसेस बी में भी हमारा वेट लॉस हुआ है. कितने का वेट लॉस है? 5% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड. एंड स्क्रैप लॉस कितना है? 10% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस. सो राइट डाउन बाय नॉर्मल लॉस इन वेट एंड बाय नॉर्मल स्क्रैप लॉस. राइट डाउन ओवर योर स्क्रैप लॉस of the units introduced. So 8,300 ka 5% is the weight loss. So this comes to how much? One more thing class. In process B, they have also given us the additional, देखो input हुआ है. In the process B, additional input भी हुआ है. 700 units at the rate of 200. So we need to write it down the additional output. Sorry, this is additional input. कितनी units थी? 700 units at the rate of 200. So 700 into 200 becomes 1,40,000. So now the normal loss will be calculated of the units introduced. So 8,300 plus 700. This comes to how much? 9,000. Sorry, 900. But it was 5%. So it will be 450. 9,000 ka 5% is a weight loss. So it will be 450. Now we won't be having its value. We cannot regain it and it don't have a sellable value. Scrap loss was 10% of the units introduced. So this 9,000, that is 8,300 plus 700. So 9,000 ka 10%. So 900. Now they have given us the value. 10 units का कितना है? 2,000. So we need to again do the calculation कि 10 units is costing me 2,000. तो मेरा loss कितने का हुआ है? Normal loss 900 units का. तो 900 units का कितना? Okay, because this 2,000 was given for 10 units. तो whereas अपना तो normal loss कितना हुआ है? 900 units का. So 900 units का कितना? So here you will be getting the amount of 1,80,000. Now how you can get the rate? 1,80,000, that is value divided by units, divide by 900. 1,80,000 divide by 900. So this will be equal to how much? 200. This will be equal to 200 rupees. Chalo, so we are done. Now we need to see first. Okay, then they have also given us the output of 7,800. But इसके बाद कोई process नहीं होना है. So this directly will become a finished stock. So by finished stock,
7,800. Now we need to first tally the units column. Debit side पर it is coming to 9,000. Credit side पर it is coming to 9,150. तो shortfall कहाँ पर हुआ? Shortfall is on a डेबिट साइड. तो शॉर्टफॉल अगर डेबिट साइड हो रहा है क्वांटिटी के कॉलम में, तो इसका मतलब वी हैव गेन्ड इट. तो ये हो जाएगा हमारा एबनॉर्मल गेन. एंड ये हमारा क्या था? बैलेंसिंग फिगर इन द क्वांटिटी कॉलम. कितना है? 150. सो नाउ 9150. We need to calculate the per unit now. Rate per unit find out करना पड़ेगा. So what is the formula? Debit side का amount minus credit side का normal loss का value. So debit side का how much it is coming? 17,86,500 minus its value, that is 1,80,000. So let's apply this into the formula. 17,86,500 minus 1,80,000 divide by units introduced. कितना units introduce हुआ है total? 8,300 plus 700. So 9,000 plus normal loss की quantity. अब देखो normal loss कितना हुआ है? 450 plus 900 which comes to 1,350. So 9,000 minus 1,350 will give me the rate of 210 rupees. So let's multiply over here. Finished stock will be at 210 as well as the abnormal gain का भी कितना amount होगा? 210. Rate will be 210. 16,38,000. 150 into 210. 31,500. अब देखते हैं टोटल करो. डेबिट साइड इट इज कमिंग टू 18,18,000. क्रेडिट साइड 18,80,000. मतलब टैली हो गया. प्रोसेस अकाउंट शुड गेट टैली. टैली होना ही चाहिए प्रोसेस अकाउंट. एंड एवरी टाइम एवरी सम में प्रोसेस अकाउंट विल गेट टैली. Now in this sum they have asked us to prepare two additional accounts, that is abnormal gain account and abnormal loss account. ठीक है. तो अब देखो प्रोसेस ए में हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट. एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस ए. सो चलो प्रोसेस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी सेम वे में बनेगा. पर्टिकुलर्स यूनिट rate rupees, particular units rate rupees. So we need to first find वो वाली एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी टू प्रोसेस ए. कितने का एबनॉर्मल लॉस आया? 200. 180 is the rate. So 200 units, 180 is the rate, which comes to 36,000. सेम वे हमें प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन हुआ है. सो एबनॉर्मल गेन का व्हाट विल बी द एंट्री? एबनॉर्मल गेन अकाउंट. Yes, it will be credited. So process B account debit to abnormal gain account. Process B to abnormal gain. So in abnormal gain by process B. कितने की abnormal gain का units was 150 and rate हमने cost per unit से निकाला था, that is coming to 210. So 31,500 is the amount. So ये दो तो एंट्री पोस्ट हो गई. नाउ अब सपोज ये अगर मैं एबनॉर्मल जो लॉस हुआ
इफ आई टेक दिस ऑन अ नॉर्मल लॉस का जो मेरा रेट था, अगर मैं उसके ऊपर लू तो मैं मार्केट में कितने पे ये स्टॉक बेच सकती थी और मैं कितना पैसा मुझे आ सकता था, दैट आई नीड टू फाइंड इट आउट. इफ आई सेल दिस इनटू द मार्केट एट द लॉस, ये देखो ये तो मेरा एक्सपेक्टेड रेट था ना 180, ठीक है, बट मैंने एक्चुअल में ये स्टॉक कितने में बेचा है, 80 रुपीज में बेचा हुआ है. तो अगर मैं इसको बेच रही हूँ 80 पर, तो मुझे कितना कैश आया है मेरे पास, बाय कैश अकाउंट, टू पूरा का पूरा 200 यूनिट्स, दिस होल ऑफ द 200 यूनिट्स आई विल बी सेलिंग इट अप, बट रेट विल बी व्हाट 80, नॉर्मल लॉस का रेट, क्योंकि ये मेरा एक्सपेक्ट, ये मैंने क्या किया था 180, तो मैंने एक्सपेक्टेड था मेरा कि इतना है मेरा, बट एक्चुअली में मार्केट में मुझे उसकी वैल्यू कितने की मिलेगी, 80 रुपीज के हिसाब से ही मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी. सो दिस विल बी हाउ मच, 16,000. नाउ शॉर्टफॉल देखो, इफ आई टेली नाउ, हमें रेट को कभी टैली नहीं करते, हम सिर्फ यूनिट्स कॉलम को टैली करते हैं, एंड वी टैली द रेट कॉलम, दैट इज वैल्यू कॉलम. 36, दैट इज अमाउंट कॉलम. चलो 236,000, बिकॉज योर डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट. तो जहां पर भी शॉर्टफॉल आ रहा है अमाउंट में, दैट इज माई लॉस. नाउ ये यूनिट्स को इफ आई एम सेलिंग इन द मार्केट एट द रेट ऑफ अ नॉर्मल लॉस की यूनिट्स, तो मुझे सिर्फ 16,000 रुपया मिल रहा है. तो जो अब बाकी का जो बचा है, दैट इज माई लॉस, इट इज माई लॉस. सो दिस विल गो इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So write it down by costing प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जितने का भी लॉस आया बैलेंसिंग फिगर, दैट इज योर लॉस. चलो अब ये तो हमने बेच दिया, बट अभी गेन, सेम वे गेन कितने का था, 150 210, बट यही गेन मुझे इसमें से देखो, गेन इज व्हाट, कि व्हेन मेरा जो वेस्टेज है वो कम हो गया है, ठीक है. सो वेस्टेज कम हो गया, मतलब मेरा जो लॉस है वो तो कम हो गया है. सो बाय हियर यू विल बी राइटिंग डाउन नॉर्मल लॉस, कि अब मुझे मतलब मेरा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है. सो 150 यूनिट्स तो वो ही रहा, बट हियर वी हैव टू टेक अ रेट ऑफ द नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस का रेट कितना था यहाँ पर, सी नॉर्मल लॉस का रेट वॉज 200, सो आई हैव टू take it as of a rate of 200. So 150 at the rate of 200 will be how much, 30,000. समझ में आया. ये यही चीज अगर नॉर्मल लॉस के वैल्यू पर मार्केट में ये करूं, तो मुझे एक्चुअल में मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कितने का लॉस हुआ है. नाउ सी क्रेडिट साइड इज हायर देन डेबिट, सो आई विल बी राइटिंग डाउन दैट क्रेडिट साइड टोटल ऑन बोथ द साइड्स. डेबिट पे शॉर्टफॉल है, तो दैट विल बी माई कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट विल गो वेयर, इट विल गो इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब अभी इसके ऊपर जो भी मेरा प्रॉफिट आया वो मेरा एक्चुअली में प्रॉफिट है. 1,500 rupees. So now it got tallied. Yes, now it got tallied. So abnormal loss and abnormal gain we need to value at where, we need to value on a नॉर्मल लॉस का रेट. ये जो 200 था वो कौन सा हमने नॉर्मल लॉस का रेट लिया था फॉर एबनॉर्मल गेन, एंड